Yes, in this session we are going to discuss again case study based question, but the topic is refraction of light. तो इससे पहले हमने जो सेशन लिया था उसमें हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्पेरिकल मिरर्स की बात करी थी हमने, ठीक है ना। स्पेरिकल मिरर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस थे। इसमें हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम श्योर दीज विल हेल्प यू इन कमिंग एग्जाम ऑल्सो. So when you start solving these questions, so you have to read the paragraph very carefully. And उसके बाद में जो इसमें given information है उसके बेस पर क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं. Some questions can be asked related to the paragraph, but उसका आंसर जरूरी नहीं है कि आपको उस पैराग्राफ में मिले, तो घबराने की कोई बात नहीं है. Because out of 5 given multiple choice questions, you have to solve only 4. Okay, now let's start the सेक्शन. सो जैसे हमने पहले बताया था आपको कि इसमें आपको सम क्वेश्चन जो होंगे बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजनिंग पर भी होंगे. सम क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजनिंग. ठीक, तो असर्शन और रीजनिंग जो बेस्ड क्वेश्चंस है वी शैल बी डूइंग इन नेक्स्ट सेशंस. उसमें इनको नेक्स्ट सेशंस में इनको हम करेंगे. आज जो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं वो हमारे हैं सिर्फ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, राइट. Assertion and reasoning based questions are also very very important. उनमें भी ध्यान से हमको पढ़ना होता है. तो आज का सेशन शुरू करते हैं with case study questions. So फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए, it is based on the refraction of light. Okay, refraction of light through lenses and glass lab, वो भी आगे आएंगे. So when the rays of light travel from one transparent medium to another, the path of light is deviated. Okay, means change in path. This phenomena is called refraction of light. The bending of light depends on the optical density of the medium through which the light travels or passes. Okay, light passes. Right. The speed of light varies from medium to medium. A medium in which speed of light is more is optically denser medium, whereas the medium in which speed of light is less is optically denser medium. Whenever light goes from one medium to another, the frequency of light does not change. However, speed and wavelength, okay, change होते हैं ना, wavelength change. It is concluded that change in speed of light is basic cause of refraction of light. Now, question based on this given paragraph or based on information. तो डायग्राम इज ऑल्सो देयर. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है. व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास, है ना. अब यू नो ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है. तो रे ऑफ लाइट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल और गो स्ट्रेट और नन ऑफ दीज. तो नन ऑफ दीज तो देखो होगा नहीं, गो स्ट्रेट भी नहीं होती है बिकॉज चेंज इन मीडियम इज देयर. तो लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. तो ये ऐसे आई है नॉर्मल पर. इट विल, डेंसर मीडियम है तो स्पीड ऑफ लाइट विल बी लेस. तो इन डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम. तो क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. तो नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंड हो जाएगी, है ना. तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए. A is the correct option, right? In OMR sheet, you have to just write the option, which option is correct. A, B, C, D. ये आपको लिखना होगा, ठीक है. So a ray of light passes from a medium A to another medium B. No bending of light will occur if the ray of light hits the boundary of the medium B at an angle. Oh, no refraction. Okay, so change in medium is there. This is the one medium A, this is another medium B, but no refraction is taking place. Ray of light passes from a medium A to another medium B. No bending of light will occur if the ray of light hits the boundary of medium B at an angle O. तो ये boundary of medium B, ये इंटरफेस हो गया इनका, है ना. तो 45 तो ऑब्लिकली हो जाएगा, है ना. 45 ये अगर हम बात करें नॉर्मल है तो ऑब्लिकली ये नहीं होगा ऑप्शन. 180
तो रे ऑफ लाइट विल गो लाइक दिस, तो ये नॉट गोइंग फ्रॉम वन मीडियम अनदर, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। 0 डिग्री क्या होगा? 0 डिग्री, तो 0 डिग्री मीन्स उसके साथ ही। 180 में तो क्या होगा? 180, 180 ऑप्शन नहीं है, 0 डिग्री भी ऑप्शन हमारा नहीं है। तो 0 डिग्री मीन्स नो एंगल इज फॉर्म, नो एंगल इज फॉर्म। और इसमें देखिए 180 कैसे होगा, ये तो हमको सिर्फ बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन है, तो 180 भी यहाँ पर नहीं बनेगा। तो हमारा करेक्ट एक ऑप्शन बचता है 90। चेक करते हैं कि ठीक है कि नहीं। ये देखिए जब 90 डिग्री पर गिर रही है, ये हमारा नॉर्मल है, और इसी के अलोंग रे ऑफ लाइट आ रही है ना, इसी के अलोंग रे ऑफ लाइट आ रही है। ठीक, तो दोनों देखिए सेम है। ये 90 पर रे ऑफ लाइट गिर रही है, तो इट विल गो स्ट्रेट। ओके, तो नो रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस। अब यहीं पर नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस केस में अगर हम पूछ ले, एक क्वेश्चन और अब बना सकते हैं। हमने आपको बोला था कि ट्राई टू बी योर ओन टीचर, क्वेश्चन से और क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो अगर इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जब रे ऑफ लाइट इज फॉलिंग नॉर्मली ऑन द इंटरफेस, तो एंगल आई एंड एंगल आर की वैल्यू कितनी होगी? यस, व्हाट इज द वैल्यू? इट विल बी 0 बिकॉज देयर इज नो एंगल, है ना। 0 डिग्री का आंसर इसमें वैल्यू आएगा आई और आर का। When light travels from one medium to another, the frequency of light, ये तो अभी हमने देखिए क्वेश्चन में देख मिल गया ना। तो when light travels, तो ये होता है v equal to f lambda, है ना। तो light travels from one medium to another, तो अभी पैराग्राफ में गिवन है, तो इसलिए पैराग्राफ को बड़े धीरे से आराम से पढ़ेंगे, सिंसियरली पढ़ेंगे। नो नीड टू बी इन हेस्ट, जल्दी में की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपका सेंटर दूसरे स्कूल में हो, सो नो नीड टू वरी। तो फ्रीक्वेंसी इसमें क्या रहती है? पैराग्राफ में दिया है, सेम रहती है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स सेम, ये तो ऑप्शन नहीं। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स सेम ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन वेवलेंथ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज चेंज। तो चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट causes change in the speed of light, okay, when it travels from one medium to another. So now fourth question. The bottom of pool filled with water appears to be, कैसा दिखाई देता है? यहाँ पे देखिए fill in the blank आ गया ना। 4 ऑप्शंस में कौन सा आएगा? shallower, deeper, at the same depth, empty। empty तो नहीं होगा, same depth भी नहीं होगा, because ray of light is coming from, ये हमारा एयर हो गया, ये हो गया वाटर। तो वाटर से आ रही है हमारी, है ना। जब वाटर से आ रही है तो क्या होगा? चेंज इन पाथ, चेंज इन पाथ विल बी देयर एंड इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखिए ये जो है ऐसा लग रहा है कि यहां से आ रही है ना। ये डायग्राम हमने आपको पहले बताया था। तो अगर आप यहां से देख रहे हैं और ऊपर से देख रहे हैं, ठीक, तो यहां से जो डेप्थ है, एक रे और लेंगे तो ऊपर दिखाई देगा। ओके, तो इट अपीयर्स शैलोअर। ठीक, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। डीपर भी नहीं होगा एंड ये भी नहीं। ठीक है, तो डायग्राम की हमने प्रैक्टिस आपको पहले कराई थी, इसको हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। सो एक बार खुद थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और देन यू विल कम टू नो। ठीक, सो व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास टू वाटर, नाउ ग्लास टू वाटर, किसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होता है? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यू नो। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो होती है, इट इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये आपको मालूम है ना। ठीक है, इफ आई आस्क यू द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर, देन डू यू रिमेम्बर कितनी वैल्यू होती है? क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं तो साथ साथ थोड़ा सा रिवीजन भी होता रहेगा। यस, हु विल टेल मी? यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आंसर हैज बीन गिवन बाय सूर्यांश। The refractive index of glass is 1.5 and refractive index of water is 1.3। तो देखिए यहाँ पे रिवीजन भी हो गया साथ में, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास टू वाटर, द स्पीड ऑफ लाइट को क्या होगा? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो अब यहाँ पर क्या मीन्स रेयर मीडियम हो गया, पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, तो द स्पीड ऑफ लाइट विल, यस, स्पीड ऑफ लाइट विल इंक्रीज।
तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया, स्पीड ऑफ लाइट विल इंक्रीज। डिक्रीज नहीं होगा, सेम नहीं रहेगा, सेम तो कभी भी नहीं होता है। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, डिक्रीजेस एंड इंक्रीजेस, ये तो पॉसिबल होता ही नहीं है, ठीक है ना। ये रोड थोड़ी है जहां पर अपने आप कंट्रोल कर लिया स्पीड को, कि कभी स्कूटी तेज दौड़ा लिया, कभी धीरे कर लिया, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन इज इंक्रीजेस, बिकॉज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट विल इंक्रीज। नाउ देखिए, एक क्वेश्चन हमने इसमें और बना दिया है ना, 6, इसमें 6 क्वेश्चन दिए हैं। एग्जाम में आपको 5 आएंगे, 5 में से 4 करने होंगे, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे ही हमने इसमें 6 क्वेश्चन दे दिया, 6 क्वेश्चन बनाया, अपने आप बनाया है। Same way you can add more questions to the given this question. So 6 question क्या है? A ray of light, it's a good question, important question है, falling obliquely. The ray of light obliquely गिर रही है, देखिए, मीडिया A and this is मीडिया B, तो obliquely गिर रही है। तो we have done refraction में ये condition है कि ray of light should fall obliquely. Only then either it will bend or will move away, है ना, और मूव अवे। तो इट विल बेंड, और यहाँ तो देखिए बेंडिंग होगा, यहाँ क्या होगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है कि इट शुड गो स्ट्रेट, ओके। कब जाएगी स्ट्रेट? ए रे ऑफ लाइट फॉलोइंग ऑब्लिकली इन द इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडिया विल गो स्ट्रेट, सीधी कब जाएगी? ये मीडियम ए हो गया, ये मीडियम बी हो गया, ये स्ट्रेट जानी चाहिए। It should go straight means no refraction. No refraction should take place. ये कब पॉसिबल है? Just try to recall. We have done. ठीक है, हिंट इससे मिल जाएगा, ठीक। देखिए, yes, anyone? Yes, Aram has done. The क्या होना चाहिए? देखिए ऑप्शन देखिए, the refractive indices of two media is same. ये ऑप्शन है हमारा यहाँ। If the refractive index of first medium is more than the second, ये तो होगा ही नहीं, ठीक। इस केस में तो क्या होगा? More than the second, तो दिस में चेंज इन पाथ होगा। If the refractive index of first is less than the second, तो यहाँ भी चेंज इन पाथ होगा। Not possible, ये तो हो ही सकता है ना, साइंस है तो पॉसिबल होगा। तो refractive indices of two media is same. This is the correct option given by Arham. तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दोनों क्या होना चाहिए? मीडिया शुड बी सेम। यहाँ पर चेंज है तो चेंज इन पाथ हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसकी जगह क्या दे सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या यूज कर सकते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडिया ए एंड ऑफ मीडिया बी अगर सेम होगा, तब भी क्या होगा? रिफ्रैक्शन विल नॉट टेक प्लेस, नो चेंज इन पाथ विल टेक प्लेस। तो ये क्वेश्चन देखिए ऑप्टिकल डेंसिटी के फॉर्म में भी आ सकता है ना। ऑप्शन रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का ना देखें, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वन मीडियम इज इक्वल टू ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ सेकंड मीडियम, ये सब दे सकते हैं। तो प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। तो रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस, ये पैराग्राफ है देखिए। सो the lenses form different type of images when object is placed at different positions in front of them. When a ray is incident parallel to the principal axis, then after refraction passes through the focus or appear to come from the focus. अब आपको पता चल गया होगा कौन कौन से लेंस की बात कर रहे हैं। When a ray goes through the optical center of the lens, it passes without any deviation. Okay, if the object is placed between focus and optical center of the convex lens, direct and magnified image of the object is formed. Okay, convex lens की बात हो रही है। Now, as the object is brought closer to the convex lens from the infinity to focus, the image moves away from the convex lens from focus to infinity. Also, the size of image goes on increasing, and it is always real inverted. This all we have done. Okay, तो सिंपल पैराग्राफ है, देखिए बुक से लिया हुआ है ना। A concave lens always forms a virtual, erect and diminished image irrespective of the position of the object in front of it. तो ये पैराग्राफ हो गया। अब इस पैराग्राफ के ऊपर बेस क्वेश्चन है, उनको हमें करना है। चलिए
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, और इससे पहले हम पैराग्राफ में पढ़ रहे थे कि ऑब्जेक्ट जब हम देखिए इंफिनिटी पर है, पास ला रहे हैं, लेंस के पास ला रहे हैं, तो इमेज कैसे बनता है ना। सो द चलो बना के दिखाते हैं। ओके, सूर्याक्ष इज सेइंग सर इमेज इसमें बना के दिखा दीजिए। तो देखिए दिस इज लेंस, ये लाइन थोड़ा ऊपर चला गया, कोई बात नहीं। रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज ओके, ये हो गया। एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहां से देखिए रिफ्रैक्शन होगा, यहां मिलेंगी और यहां से ये यहां पर मिलेंगे फोकस पर। ठीक, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, देन इमेज विल फॉर्म एट फोकस। हमारा करेक्ट ऑप्शन हमारा फोकस, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 2F पर नहीं होगा, ऑप्टिकल सेंटर पर तो इमेज बिल्कुल ही नहीं बनती है बिटवीन F एंड 2F। ओके, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम अगर हमें भूल भी जाता है, क्रैमिंग तो करना नहीं है, तो डायग्राम हमारी हेल्प करेंगे। सो डायग्राम की प्रैक्टिस भी आपको साथ साथ करते रहना है, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। देखो, फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्म इज कहां पर बनेगी? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। जो कॉनकेव लेंस है हमेशा कैसी इमेज बनाता है? देखिए कॉनकेव लेंस यहां से ये जाएंगी, ये देन यहां से लग रहा है कि आ रही है, ये हो गया हमारा फोकस। सेकेंड रे कहां से जाएगी हमारी? सेकेंड रे जाता है हमारा एट फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस। तो ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा है फोकस पर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट फोकस, तो हमने डायग्राम इंफिनिटी वाला ले लिया ना, तो डायग्राम हमें चेंज करना पड़ेगा इसमें। तो रे ज्यादा ऊपर चला गया हमारा, कोई बात नहीं, फिर दोबारा कर लेते हैं इसको। ठीक, सेंटर ये हो गया, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो फर्स्ट रे कहां से आएगा? इट विल गो पैरेलल एंड देन, ठीक, एंड कहां से आएगा? ऐसे लग रहा है। सेकेंड रे विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर से आएगा। तो इमेज कहां बन रहा है? इमेज इज बिटवीन, ये है O, F एंड O। और इमेज बन कैसा रहा? देखिए इसमें पोजीशन ही पूछा है, उन्होंने पूछा पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज के बारे में पूछा है। तो इमेज इज रियल एंड स्मॉलर, रियल तो होता नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर बन रहा है। देखिए वर्चुअल एंड इन्वर्टेड में वर्चुअल एंड स्मॉलर, वर्चुअल होगा और स्मॉल होगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस जो है हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल बनाता है एंड स्मॉल बनाता है ना, वर्चुअल एंड स्मॉल इमेजेस फॉर्म। नेक्स्ट, the size of image formed by convex lens when the object is placed at focus of convex lens. Object is placed at focus of convex lens. कैसा होगा? The size of image form. Okay. So object is placed at focus. क्या small होगा image? No. Point size होगा? No. Same as that होगा object होगा? No. Focus पे रखा है तो कैसा होगा? Highly magnified. The image of the object when it is placed at the focus of the convex lens is highly magnified. डायग्राम कैसा होगा इसका? देखिए डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस करें। ये हो गया, ओके, ये हमारा ये हो गया F, this is 2F and here again, ठीक। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। साइज ऑफ बाय कॉन्वेक्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। देखिए ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पर रखा हुआ है, ये ओके, कोई बात नहीं। सो यहां पर रे ऑफ लाइट क्या पैरेलल,
and after that it will pass through focus. ठीक, सेकेंड रे कहां से आएगा? इट विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। वही दोनों मिलेंगी? दोनों कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इमेज विल बी हाईली मैग्निफाइड। देखिए है ना, ये देखिए इसके नीचे आ रहे हैं, तो इमेज विल बी हाईली मैग्निफाइड ऑन द अदर साइड। ओके, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड ऑल्सो। अब यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि इमेज का नेचर भी कैसा होगा ना, अगले क्वेश्चन पूछा सकता है। तो इट इज हाईली मैग्निफाइड। नाउ नेक्स्ट, when the object is placed at 2f in front of convex lens, the location of image is कहां पर होगी, है ना? अब 2f पर है, object is placed at 2f in front of the convex lens. Where is the location of image? इसको भी ऐसे आप बना के दे सकते हैं और आपको एग्जैक्ट मिल जाएगी, है ना, लोकेशन ऑफ इमेज मिल जाएगा। तो इसमें भी आपको क्रैम नहीं करना। एट f तो नहीं होगा, एट इन्फिनिटी भी नहीं होगा, ये हमने पहले वाले केस पर लिया। बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर 2f पर है ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो कहां पर होगा? एट 2f ऑन द अदर साइड। तो एट द सेम मींस 2f पर ही बनेगा। और इमेज कैसा होगा? इट विल बी इन्वर्टेड एंड रियल, इन्वर्टेड एंड रियल। ओके, सो डायग्राम विल हेल्प यू everywhere. So now next, for which position of the object in front of concave lens the image form is between focus and optical center? Okay, concave lens की बात हो रही है। So image form is between focus and optical center. Focus and optical center के बीच में इमेज कब बनेगी? तो जब ऑब्जेक्ट कहां भी होगा, anywhere between optical center and infinity, है ना, ये है हम कर चुके हैं। तो एट एफ नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। इन्फिनिटी पर होगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर, है ना। तो बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ ये हमको समझना है, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये होगा एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर अगेन यू कैन ड्रॉ द डायग्राम। हमने सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दिया, यू कैन ड्रॉ द डायग्राम एंड कैन हैव द प्रैक्टिस। ओके, नाउ नेक्स्ट, थोड़ा काम आपको भी करना पड़ेगा कि जिससे आपकी लर्निंग ज्यादा हो। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमने खुद बनाया है। तो कुछ नहीं, ऐसे आप भी क्वेश्चन बना सकते हैं बुक से पैराग्राफ लेके, थोड़ा चेंज कर और साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐड कर दीजिए। तो पावर ऑफ ए लेंस इज एबिलिटी टू कन्वर्ट और डाइवर्स द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज मीटर, ओके, per meter. It is known as diopter. The focal length f of a converging lens is considered positive and that of diverging lens is considered negative. Thus, the power of converging lens is positive and diverging lens is negative. Power of any number of lenses is in contact is equal to the algebraic sum of power of two individual lenses, है ना। ये सब आपने पढ़ा हुआ है बुक से, ठीक, बुक में भी है, एनसीईआरटी में भी है, ओके, दूसरी बुक में मिलेगा। तो आप भी कोशिश करें कि कोई भी पैराग्राफ लेके खुद क्वेश्चंस बनाने की प्रैक्टिस करें। उससे अगेन आई रिमाइंड यू, योर लर्निंग विल बी मोर। सो विच लेंस हैज मोर पावर, अ थिक लेंस और अ थिन लेंस? किस लेंस की पावर ज्यादा होती है ना, थिन लेंस और थिन लेंस। हमने पढ़ा हुआ है कि यस, क्या पढ़ा हुआ है कि थिन लेंस हैज, yes, focal length of thin is more than the focal length of thick lens. पतला जो लेंस होता है thin, its focal length is more than the focal length of thick lens, है ना, ठीक। एंड तो which has more power, तो पावर किसकी ज्यादा होगी? तो फोकल लेंथ इसकी ज्यादा है और पावर क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगी, पावर क्या होगी? कम होगी। तो क्वेश्चन ये है कि किसकी पावर ज्यादा होगी, विच हैज मोर पावर। तो थिक लेंस की पावर क्या है? थिक लेंस की फोकल लेंथ क्या है? कम है, तो थिन, ओके, तो ये कम होगा, फोकल लेंथ कम है तो पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अ थिक लेंस हैज मोर पावर,
तो ये हमारा ऑप्शन ठीक होगा, ये नहीं होगा, दोनों का सेम हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ओके, एनी प्रॉब्लम हियर? तो देखिए इस तरह से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, तो द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ए is 5 centimeter and focal length of lens B is 20 centimeter. तो द पावर ऑफ A कितनी होगी ये पूछा हुआ है ना। पावर ऑफ A is less than, more than और क्या है ना। तो फोकल लेंथ ऑफ A is 5 centimeter, तो पावर क्या होता है? पावर इज इक्वल टू, हमें पढ़ा हुआ है फार्मूला की 100 अपॉन F। तो पावर ऑफ A इट विल बी 100 अपॉन 5 इज इक्वल टू 20 डायोप्टर, एंड पावर ऑफ B कितना होगा? 100 अपॉन 20 इक्वल टू 25 सा 100 है ना, टेबल आता है। सो देखिए यहाँ पर, तो PA is 20 एंड PB is 5D। तो पावर ऑफ A is more, पावर ऑफ A is more than the power of B। लेस देन तो हमारा आया नहीं है, ये 20D हमारा आंसर है, लेकिन कंपैरिजन नहीं है यहाँ पर, है ना। सो बोथ A एंड C, तो बोथ A एंड C पावर 20 सेंटीमीटर है, पर इससे पूछा तो पावर ऑफ A इज 20, ये दोनों ऑप्शन है इसमें, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है। A भी हमारा सही है और D भी सही है, तो मोर देन पावर ऑफ B है, तो इसको इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट हमारा आंसर ये वाला है, D। तो बोथ A एंड D 20 डायोप्टर आया देखिए, और ये किससे है? B के पावर से ज्यादा है ना। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बोथ A एंड D। तो इस तरह से आप भी क्वेश्चंस बनाइए, पैराग्राफ अपने आप खुद बनाइए, लीजिए और प्रैक्टिस करिए। नाउ नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ A, लेंस A is 5 centimeter and focal length of B is -15। तो फोकल लेंथ ऑफ A is 5, फोकल लेंथ ऑफ B is -15 सेंटीमीटर भी लिख लेते हैं। चलिए, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B कितना होगा? ओके, इनकी पावर कितनी होगी? तो इसमें क्या कर रहे हैं, सिंपली कर लेते हैं। हमने फार्मूला किया हुआ है 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। ठीक, इसकी वैल्यू रख लीजिए 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन -15 एंड इट विल बी 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 15। एलसीएम कितना आएगा? 15, 5 3 जा 15 एंड 15 1 जा 15, तो 2 अपॉन 15। ओके, सो F कितना आ जाएगा? 15 अपॉन 2 मीन्स 15 अपॉन 2। यस, 3 में से क्या 2, 15 अपॉन 2। तो दोबारा से देख लीजिए इसको, तो 15 एंड 5 है, तो इनका एचसीएम कितना आ गया? 15। तो 5 3 जा 15 एंड 15 1 जा 15, 3 में -1 15, तो 2 अपॉन 15। तो कैपिटल F आ गया कितना? 15 अपॉन 2, और हमारा यस 15 अपॉन 2। अब हमको क्या निकालना है? पावर। तो पावर इज 100 अपॉन F, तो ये क्या होता हो जाएगा? 100 अपॉन 15 अपॉन 2, और इट विल बी 100 इंटू 2 अपॉन 15। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो आंसर कितना आना चाहिए? 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 20, 40 अपॉन 3। ओके, 40 अपॉन 3 मीन्स 13.3। अब ये क्वेश्चन आता है कि प्लस में आ रहा है, देखिए यहाँ आंसर है प्लस 13.3 और ये माइनस भी है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो हमारा यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस में आ रहा है, तो प्लस मीन्स दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो दिस मीन्स कॉम्बिनेशन विल एक्ट एज, किस तरह से कॉम्बिनेशन काम करेगा? दिस कॉम्बिनेशन विल एक्ट एज कॉन्वेक्स लेंस, बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इट विल एक्ट एज, यस इट विल एक्ट एज कॉन्वेक्स लेंस। यहां देखिए फोकल लेंथ ऑफ A इज लेस एंड फोकल लेंथ ऑफ B इज मोर। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर हमें इसकी नेचर यहां से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर एक की फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, B की ज्यादा है, तो कॉम्बिनेशन विल एक्ट एज यस कॉन्वेक्स लेंस। पावर ऑफ लेंस इज -10 डायोप्टर, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड इट्स नेचर पूछिए, है ना। तो पावर दे रखी है, तो इस पर पावर
पावर कितना है, यस, क्या निकालना है, फोकल लेंथ, कितना रखेंगे 100, एफ निकाल लेंगे, एफ कितना होगा 100 अपॉन, यस, कितना आ गया आंसर, यस क्विकली, दिस कैंसिल, आंसर इज -10 सेंटीमीटर, तो माइनस आ गया है ना। तो माइनस फोकल लेंथ किसकी होती है, दिस इज माइनस फोकल लेंथ किसका होगा, कौन, के मिरर। तो देखिए किसका कौन सा आंसर है, तो -10 सेंटीमीटर, नेचर तो इसमें है नहीं तो क्या, तो कॉनकेव मिरर की बात हो रही है ना, तो कॉनकेव मींस डाइवर्जिंग मिरर, तो -10 सेंटीमीटर डाइवर्जिंग मिरर है, -10 सेंटीमीटर है लेकिन कन्वर्जिंग तो है नहीं है, +10, प्लस तो हमारा आंसर आ ही नहीं रहा, तो ये भी नहीं है, करेक्ट ऑप्शन हमारा आ गया -10 सेंटीमीटर एंड डाइवर्जिंग मिरर। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं तो डू शेयर विद योर क्लास मेट्स, नो, दूसरे हाथ भी शेयर करिए, क्योंकि हम कहते हैं कि शेयरिंग इज नॉलेज, जितना आप शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा सीखेंगे। ओके, द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज इन मस्ट एंड कंटिन्यू टू सेव वाटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if the focal length of the lens of a lens is 10 centimeter and another lens is -20 centimeter, then combination will act as, किस तरह से कॉम्बिनेशन एक्ट करेगा, ऐसा ही क्वेश्चन देखिए अभी हमने इससे पहले किया है ना, ये 5 है और यहाँ पर -10 है ना, तो देखिए इसी तरह से एक क्वेश्चन है, तो ये 10 है, ये -20 है, तो कॉम्बिनेशन विल एक्ट एज, यस इट विल एक्ट एज, कैसा, इसमें देखिए कैसा था, क्या आंसर आया था, प्लस आंसर आया था ना, तो इट विल एक्ट एज कन्वर्जिंग लेंस। फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैपिटल 1/f and here it is 1/10, it will be -1/20 because फार्मूला में मालूम है कि 1/f इक्वल टू है 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक, दिस वी हैव डिस्कस इन ए सेशन, इसकी वैल्यू रखिए, यस करिए, सॉल्व करिए आप, यस यस, तो यहीं से देखिए क्लियर हो गया है ना, तो 2 - 1 1/20 आ गया है ना, तो 1/f इक्वल टू 1 - 20, सॉरी 1/20, therefore f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। किसमें आया है, प्लस आया है, प्लस मीन्स विच लेंस, कन्वर्जिंग लेंस है ना, तो कॉम्बिनेशन विल एक्ट एज कन्वर्जिंग लेंस, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक हो गया, डाइवर्जिंग लेंस नहीं होगा, सिंपल ग्लास भी नहीं होगा, ग्लास स्लैब भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप और क्वेश्चंस बनाइए, प्रैक्टिस करिए, खुद पैराग्राफ चूज कीजिए, खुद क्वेश्चंस बनाइए, खुद उनके ऑप्शन लीजिए एंड ट्राई टू ओके gain knowledge. Any other problem? No? Okay, then in next session again we shall be talking about some multiple choice questions based on case study but from natural phenomena. इस तरह से आपको प्रैक्टिस और देते ही रहेंगे, ठीक है। So thank you very much to all of you. God bless you.